What we're going to do is basically start with the definitions first. Okay. And what my plan is to give you a brief overview of the minimum amount of knowledge that you should have of the subject. Okay. Probably towards today, we'll be going over the first half, which is mostly theoretical, but at the end, when you are about to evaluate the patient yourself, then I'll ask you to, and this is Dr. Farooq favorite word, inculcate, okay, those points that you learn in your history and in your examination. Okay, this is exactly what you're supposed to look in a patient when you are seeing a patient of preeclampsia. Okay? And then after that, because it's not a lengthy topic, and last time I got hell because of the fact that we went over time because I wanted to finish the thing. So what we'll do is we'll divide it up into 2 or 3 things. Otherwise, what you can do is take the clinical features wala hai. Then there is this bit about prevention. Then there is a bit about long-term consequences. Then there is a bit about anti-partum care, postpartum care. So it is quite a decent length as is the GC. And then there is another separate thing. This पे आप अलग conversation कर सकते हैं, which is about differential diagnosis by you are looking at this, which is quite खतरनाक. अच्छा, so hypertension तो पता है 140 by 90, though they are making some sort of changes in it. Like that, what happens if I change? Suppose I start saying that systolic should be 130 and diastolic 85. क्या फर्क पड़ेगा उससे? Think what happens is that yes, they've been changing blood sugar fasting levels. ठीक है, पहले कुछ और होती थी, फिर उसको थोड़ा सा change कर देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं. There was a time when it was 120 by 80, then it became 140 by 90. ठीक है, और उसका फर्क ये पड़ता ही है कि then वो जो कह रही थी बिल्कुल कि उसका consequence क्या होता है when other people start getting into that thing. उन्होंने जब change किया ना blood sugar fasting का हल्का फुल्का उससे नीचे किया, तो उससे ये हुआ कि इनकी जो सेल्स थी वो $1 या $2 बिलियन बढ़ गई थी. जितने भी दवाइयां बनाते हैं, oral hypoglycemics भी और insulin वगैरह, ठीक है. और ये याद रखना कि most of the trials which are carried out are organized by these guys. ठीक है, so so you understand what I'm trying to tell you? And इसी तरह जिस तरह when you're learning laparoscopy or when you go to learn any hysteroscopy या robotic surgery या कोई भी नई चीज जो आती है, उसमें note करना कि the companies that are making the product are actually the ones who are organizing this for the document. Always remember that. So it will keep on changing. Yeah, the severe wala remains this is probably the most consistent thing, 160 by 110. Acha, a preeclampsia hai कि don't forget to use the word new. Don't forget to remember the word new. New onset of hypertension, proteinuria, जैसे आप कह रहे थे, या एक और definition आई है जिसमें proteinuria का होना या ना होना इतना significant नहीं है. That is new onset of hypertension plus significant end organ dysfunction with or without proteinuria. पहले वो normotensive है और 20 weeks में जब placenta take over करना शुरू करता है उसकी सारी चीजों को, तब से काम शुरू होता है और postpartum तक जा सकता है. ठीक है? Now, which end organs are involved usually? Liver, Okay. eyes, Well done. So Russell taught us that always सिर से शुरू करेगा. दिमाग, आंखें, ठीक है, और आंखें और नीचे फिर आ गई लिवर, फिर आ गई किडनी. ठीक है, और हमेशा से पुराने जमाने में होता था, या इतना पुराना भी नहीं, when they used to include one more thing in this thing, which is edema. ठीक है, सूज जाते हैं पैर. लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जी प्रेगनेंसी में अक्सर वैसे भी बहुत सूज जाते हैं,
लेकिन पिटिंग एडिमा होता है, बड़ा सिवियर होता है। तो अगर आपको ज्यादा कोई नजर आए और एक दो रिस्क फैक्टर जो कि पास भी डिस्कस है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि यार है तो नहीं काम खराब है। ठीक है, अब ये था इसका, इफ आई कैन फाइंड द बटन। एक्सक्यूज मी सर, जी सर आपने कहा प्रीक्लैम्सिया में न्यू न्यू ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन, तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन में भी तो पेशेंट इक्लैम्सिया में होता है विद सुपरइम्पोज्ड प्रीक्लैम्सिया। बिल्कुल तो होता ये है, जो बट दैट्स सुपर इम्पोज। I'm just talking about pre-eclampsia. I'm coming to the superimposed thing also. Okay, this is just ओके pure eclampsia. These are just the definitions and the diagnostic criteria which I thought के इसको mention कर देते हैं पहले, just to get an understanding. ठीक है जी? ओके, थैंक यू सर। No problem, no problem. Systolic. अब ये proteinuria, kidneys, platelet count, कहाँ पे problem होती है platelet count की? Liver. Serum creatinine, kidneys, ठीक है जी? Transaminases, double. पल्मोनरी एडिमा भी डेवलप हो जाता है, क्यों? ठीक है, और जो प्राइमरी वर्ड जो आप मिस कर रहे हो जिसकी वजह से सर में दर्द का भी उन्होंने सोचा हुआ है, हाइपोथेसिस, the reason why your the blood vessels turn porous, there is one word for it, vasospasm. शाबाश, well done. Vasospasm होगा जैसे लॉट टाइम आई टोल्ड यू कि आप पानी पीते जाते हो, आपके जैसे वो डायबिटीज में होता है कि इंसुलिन क्या चीज है बेसिकली? हाँ, इंसुलिन हार्मोन है, क्या करता क्या? हाँ, सेल्स में इंसुलिन एक घोड़ा है, जिस घोड़े के ऊपर बैठ के जो है शुगर है उसने बाहर से अंदर जाना, ठीक है, और अगर वो घोड़ा ही नहीं है तो अंदर नहीं जा सके। ठीक है, उसी तरह के आप शुगर खाते रहोगे, आपकी वेसल्स के अंदर नहीं हो जाएगा, आपके ऑर्गन्स में नहीं हो जाएगी शुगर, लेकिन बाहर बहुत फिर रही हो। इसी तरह पानी आप पीते जाएंगे, अंदर आपके there's an environment of what you can call starvation या thirst because of the vasospasm, and the blood will flow out, वो बाहर एक्स्ट्रा सिस्टम फ्लूइड में वो उधर चलता जाएगा, वेसल्स के अंदर नहीं होगा। ठीक, जिसकी वजह से वो सारा ज्यादा एक्यूट स्टेज पे जाके जाके पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, और इसी वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से होता है ये नीचे वाला न्यू ऑनसेट एंड परसिस्टेंट हेडेक्स। ये भी याद रखना कि when you're mentioning this, when you see headaches, it's not accounted for by any alternative diagnosis. और usually अगर वो लड़की I mean this is an American thing which I've done, तो ये एसिटामिनोफेन देते हैं हेडेक्स के लिए, ज्यादातर हमारी तरफ पैरासिटामोल चलता है। ठीक है, तो पैरासिटामोल वो खा रही है, हेडेक सेटल नहीं हो रहा। think about this thing straight away. Good morning. और ये है विजुअल सिम्टम्स एंड वाले, ये भी probably इसका पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस I'm going to just touch on it today because अगर वो उस पर शुरू होगा तो फिर वो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये घूम गया। अच्छा, ये शुक्र लागू। हाँ, दो ऑनसेट्स होते हैं इसके, which you think is more common out of these less than 24 weeks वाला या लेट ऑन? इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं करती को, हाँ सारा कुछ किताबों में लिखा हुआ, कोई नई चीज मैं इन्वेंट करके नहीं लाया। चल, अर्ली ऑनसेट कॉमन होता है। अच्छा, फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? मैं 28 वीक्स पे हूँ, ठीक है, मुझे प्री क्लेम्स करो, मेरे हाथ खराब होंगे, ज्यादा जल्दी खराब हो सकते हैं। So I think late onset is more common. Late onset accounts for about 90%. ठीक है, incidence wise देखा जाए तो out of the entire ये range of preeclampsia जो कि 4 to 6% होता है, in America it's about 5% of the population जो कि pregnant होते हैं preeclampsia होता है, उनमें से 2.7% को late onset होता है और only 0.3% को early onset होता है। Early onset has serious consequences. Why?
कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो गई ना, स्टार्ट में ही कॉन्स्टिपेशन आना शुरू होता है, तो लेट होगा तो वो एंड पर होगा तो हम फ्रीडम डिलीवरी की तरफ हम जल्दी जा सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, phrase it a bit better so that when somebody asks you, आप निकाल सकते हो. If there's a hostile environment developing inside the uterus, then you can safely take out the baby or transfer it to 6 weeks, even in a place like us. And what is the end? What is the end game for any pregnancy that you try to achieve as an obstetrician? Cover, safe baby, safe mother, or delivery of safe delivery of mother whose baby and the mother subsequently thrive. Okay? That's what your aim is in any sort of environment. So early onset पे ज़्यादा issues हो सकते हैं potential. Late पे ज़रा रात बेहतर हो जाते हैं. अब they've renamed this thing. It's basically severe preeclampsia, as mentioned in the books. आजकल उसे severe preeclampsia की जगह कहते हैं preeclampsia with severe. तो समझिए मुझे लगी चलो. इसमें severe hypertension कितनी होती है? 160-110. ठीक है, हाँ. अगर 160-110 आपको नजर आ जाए, एक रीडिंग आपने ली है और कोशिश करना कि एक बार खुद भी ले लेना, तो आप 160-110 आए तो डोंट हेजिटेट. What are you supposed to do? चलो कॉल पर हेल्प लगाएं, डॉक्टर हो भाई. मॉनिटर लगाते हैं किसी तरह प्रैक्टिस वाटर क्यों लगाए? क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर डायबिटीज हो गया बच्चों को फिर सोच सकते हैं आईडी हो सकती है। कोई साल में दर्द हो रही है, मैं क्यों मेरे को कंटिन्यू मॉनिटर लगाना. Give magnesium sulfate. हाँ, सोच सकती है, बिल्कुल आप सोच सकते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से. ठीक है, वो अगर आपके पास अब ये इसकी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उस पर भी एक नजर डालना है. आई थिंक मैं पीछे चला गया. आई एम सॉरी, आई कांट. ये अब ये याद रखना, सिस्टोलिक 160, डायस्टोलिक 110, दो ओकेजन एट लीस्ट 4 आवर्स अपार्ट. दिस इज स्ट्रिक्टली डेफिनेशन. अगर मैं डॉक्टर हूँ, लड़की को ब्लड प्रेशर हाई है, सिवियर हेडेक है, 160 110 तक जा चुका है, तो मैं खड़े होकर उसका इंतजार नहीं करूँगा. एंटी हाइपरटेंसिव then we should be initiated on confirmation of severe hypertension, in which case criteria can be satisfied without waiting for 4 minutes. ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि मैं मेरी डेफिनेशन तो कहती 4 घंटे तो हम देखते हैं कि तब तक कुछ और हो जाए, तब तक ये नीचे वाला काम शुरू हो जाए. ठीक है, सेरिब्रल विजुअल डिस्टर्बेंसेस, जिसकी क्या पैथोलॉजी थी, जिसके हाइपोथेसिस क्या है, दे नॉट श्योर. वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है जिसकी वजह से सारा ये ड्रामा शुरू होता है. ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. She'll have visual disturbances first, and then, but some people just start having seizures also. The worst headache I've ever had, I'm not sure, एक और चीज होती है जिसका अगर आप लोग पढ़ के आए, worst headache, अगर hemorrhage भी हो सकता है और एक और चीज भी हो सकती है. चलो देखते हैं कि तुम्हें the worst headache you ever had क्या. And what sort of headache is it? This is Dr. Rashid's favorite book. What's It's throbbing pain, doctor. It will be throbbing headache. जी बिल्कुल. Where? In the headache, throbbing headache. बिल्कुल ठीक. हाँ, नहीं ठीक. Which part of usually what happens is it's a frontal headache usually. Although it's written, it could be anywhere. ठीक है. But generally speaking, this is what he asks. Like whenever you ask about headache, he will tell you that frontal headache is usually blood pressure related. Then temporal headache, especially unilateral, is usually related to migraine. और occipital region में headache हो तो कहाँ पर? Usually, हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन it's not general, क्योंकि जो बीमारी होती है वो कभी साफ पढ़ के नहीं आती. So you should have a couple of these things in mind. Hepatic abnormality, impaired, वो double हो जाता है, that's fine. अच्छा, अब ये जो severe persistent right upper quadrant epigastric pain, right upper quadrant का तो अक्सर इस टाइम पे पहुंचना मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है. epigastric region पे हाथ आ जाता है, तो उससे दर्द क्यों होती है?
Why is there epigastric pain? It's all a Liver question of capsule involvement. Because liver is Liver enlarged capsule. in capsule. Capsule is going to be ruptured. ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है. There is a capsule. क्या नाम है उस कैप्सूल का जो लिवर के ऊपर कवर करता है? Glison's capsule. ब्रिलियंट. ग्लिसन्स कैप्सूल. ग्लिसन्स कैप्सूल के अंदर अगर ये हेपेटिक इम्पेयरमेंट और इस लेवल की डेवलप हो रही है कि डबल हुआ हुआ है काम और काम खराब हुआ हुआ, तो आप उसके हाथ रखेंगे एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, तो उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से या यूजुअली समटाइम्स इन सिवियर डिजीज उसमें थोड़ा सा हेपेटिक रप्चर होता है और हेपेटिक ब्लीड होती है. वो जो होती है, जिस तरह अपेंडिक्स में इन्फ्लेम्ड पार्ट ऑफ द अपेंडिक्स, जब आप उसे प्रेस करते हो तो पेरिटोनियम जाके उस पर लगता है और वो सूजी होती है अपेंडिक्स, तो आपको दर्द होती है. ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह ग्लिसन्स कैप्सूल जब ये स्ट्रेच होता है हल्के से ब्लड से लगने से या इरिटेट होता है तो तुसी करते हो तुम उन दर्दों में. ठीक है, एंड ये इसका रीजन है एपिगैस्ट्रिक पेन का. वेल डन, एक्सीलेंट. थ्रोम्बोस उसमें रप्चर हो जाए ग्लिसन्स कैप्सूल तो अल्लाह खैर करे. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है ये भाई हमेशा रहते हैं. ठीक है, और रीनल इनसफिशिएंसी एग्जैक्टली वही चीज है. पल्मोनरी एडीमा हमारा भाई वहीं का नहीं. ठीक है, लेकिन आप काफी खराब होंगे अगर ये वाला काम शुरू हो गया. पल्मोनरी एडीमा में होता क्या है वैसे? फ्लूइड कंप्लीट होने लगता है तो प्लूरल कैविटी में जो लंग को कंप्रेस करने लग जाता है, जिसकी वजह से एसओबी स्टार्ट हो जाती है. शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ. एक और चीज है जिसमें एक पेशेंट पूरा होता है कम पैराटाइनो में भी आ जाए, एसओबी होगा. एक और चीज होती है जिसमें वो करती है औरत आएगी, वो क्या है? ये मेरे साथ एक बार हुआ था लेकिन मुझे समझ नहीं आई, लेकिन वो किस्मत मेरी थी, मैं बच गया था. ठीक है, पेशेंट आती है कि ये सॉरी आई एम जस्ट डाइग्रेसिंग है, उसमें वो था कि 11:30 तो एक लड़की आई थी. वो बेबी परफेक्टली फाइन, पीटीजी ठीक ठाक, हार्ट रेट भी ठीक ठाक, एवरीथिंग लुक्स ऑलराइट एंड वो जरूर बता दिया तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी ना. तभी तो मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़नी थी उसकी ठीक है क्या. ठीक है, हाँ हाँ मियाँ था साथ. हाँ हाँ, तो उधर मियाँ साथ में भाई, मियाँ साथ खड़े होते हैं, हाथ पकड़ के आप सेक्शन कर रहे होते हैं, मियाँ साथ खड़े होते हैं जब डिलीवरी कर रहे होते हैं. मियाँ का बस ही चलता है, स्ट्रेटमी पे भी आके खड़ा हो जाए. ठीक है, तो वो दैट्स नॉट, उससे वो था वो वाला टीके. उसकी जब सांस सूंघी ना तो फिर हमें अंदाजा हुआ कि हाँ हाँ उसे उसकी जो बू आ रही थी ना तो उससे बू आ रहा था. हाँ, फिर मैंने उसको फोन किया अपना मेडिक में, हमारे दोस्तों में ये उस तरह भी सांस ले ये यार के साथ होता है. अच्छा, ये जी आ गया आपका सुपर इम्पोज अपॉन क्रॉनिक हाइपरटेंशन. अब ये ऑब्वियसली ये है कि इट्स बीन गोइंग ऑन बिफोर 20 वीक्स एंड परसिस्टिंग बियॉन्ड 12 वीक्स पोस्टमार्टम रहेगा बिकॉज इट्स क्रॉनिक हाइपरटेंशन. इसमें याद रखना कि जो नोट करने वाली चीज है कि समटाइम्स acutely इसकी resistant hypertension होती है कि you give her because she's probably been taking those antihypertensives and sometimes they work, sometimes not. In this situation, what happens is that it is some sort of a resistant hypertension. ठीक नहीं होती जल्दी, so you'll have to think out of the box and you better call for medics. कौन सी दवाई antihypertensive which is very commonly used is contraindicated? Supply. Well done. ठीक है, हाँ. तो ACE inhibitors are contraindicated. ये ध्यान रखना क्योंकि वो अक्सर आप जब उसे we call the medic over and you ask him कि यार क्या करूँ मैं, and then he'll say oh दे भाई नहीं दे, या वो कोई नया नाम देगा दवाई का तो एक बार चेक कर लेना, देने की मेहरबानी कर दे आप. ठीक है, वर्सनिंग प्रोटीन यूरिया और एग्जैक्टली बाकी पिक्चर हमारी रीजनेबली ये होती है, लेकिन इट कैन बी शुरू में जरा डिफिकल्ट टू ट्रीट, लेकिन ऑब्वियसली इट कैन कॉज प्री-एक्लैम्सिया एंड ऑल इट्स
issues related to it. Obviously फिर इसकी सब type help आ जाता है. Help, what does help stand for? खुदा का वास्ता बिना करना क्लियर वेल डन. ठीक है, वही सारी चीजें जो उसमें, अगर हेल्प का नाम ही याद रख लो ना और सिवाय उसके अंदर तुम वो CNS वाला चीज डाल दो, तो वो बाकी जितने भी उसकी एंड ऑर्गन जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है ना, विद और विदाउट प्रोटीन यूरिया, रिमेंबर प्री इक्लेम्पसिया की डेफिनेशन में ये सारी चीज मेजबान ने कहा है कि ये याद रहे आपको कि ठीक है प्रोटीन यूरिया हो गया तो ठीक है. Excuse me, sir. ठीक. Can we do uterine artery Doppler in first trimester to predict like the adverse pregnancy outcome in chronic hypertension patients? I'm coming to that. Uterine artery Doppler इतना मुझे नहीं पता, लेकिन there is another thing. There are these angiogenic factors which Sir, are जो SOGP की guidelines हैं उसमें है कि angiogenic factors and like placental growth factors they are not available in Pakistan. तो we should go for the uterine artery Doppler. तो मुझे ये confirmation करनी थी कि we can go in the first trimester. you can with the uterine absolutely go for it if it's your private patient, but then again इसकी जो positive predictive value और negative predictive value, sensitivity and specificity आपने जाना है, because it's not recommended by the American College, it's not recommended by the RCOG yet. It's recommended, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना PIGF वाला, it's in the NICE guidelines at least. तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं किया जाता, 20 वीक्स पे किया जाता है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर. हाँ, वो उसकी सिग्निफिकेंस कुछ और हो जाती है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे मैं आपको दूसरा बताता हूँ, ये जो दूसरा वाला है which is सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए नहीं किया जाता. जी, every test that you do will have a couple of cases going for you also. You will be able to predict what's going to happen next. But I think in such tests, जैसे वो फाइब्रोनेक्टिन वाला टेस्ट है ना for preterm labor, उसमें फायदा ये होना चाहिए ज्यादातर जो इन प्रैक्टिकलिटी मैंने देखा है कि जी कि आपकी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ठीक ठाक होनी चाहिए. अगर एक लड़की आती है 32-33 वीक्स पे, लोअर एब्डोमिनल पेन है, आप उसके पेट पे हाथ रखते हो तो आपको लगता है यार ये इरिटेबल यूट्रस है, 5-10 मिनट आप बैठे रहते हो, आप सोचते हो कि रखूं कि ना रखूं, फिर आप रिलक्टेंटली उसकी पेल्विक एग्जामिनेशन भी कर लेते हो, कोई ज्यादा आपको एफेसमेंट लगती नहीं है, बट यू स्टिल नॉट श्योर. सो देन यू आर कॉट बिटवीन whether I should keep her in just to look after for her or should I just send her home. तो वहां पे वो फाइब्रोनेक्टिन वाला बंदा टेस्ट कर लेता है, तो उससे क्या फायदा होता है? Confirmation of what? Patient is not in preterm Ruling out. labor and we can avoid intervention. Ruling out preterm labor. ये कहते हैं अंग्रेजी डॉक्टरी में what you're supposed to say, it's got a 90% negative predictive value. ठीक है कि 90% अगर फीटर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है 90+% चांस है that you will not live. And this is what you can document. Tell the patient कि यार I've done a fetal fibronectin on you. This test has a 90+ negative predictive value. 90% of the time you will not be in labor. ठीक है? Your neck of the womb is closed at the moment. I don't see any major effacement going on. Your contractions are at best sporadic. Your baby is doing well. I am reasonably happy with you. Now, I think it's safe to go home. And if this continues or persists in the next 6 hours or 7 hours or something, feel free to come back. But in the meanwhile, keep an eye on how the baby is moving and keep an eye if your waters break. ठीक है जी? ये कह के आप उसे लिख के डॉक्यूमेंट करके कि कल पे अगर वो जाके घर में डिलीवर कर जाए या खुदा न खास्ता कोई बात हो जाए तो आप पे मुकदमा ना हो. And that is the way you should learn how to speak to the patient. So agar similarly when we come to these things like preeclampsia and all these things, you have to basically have a test which has a badi ठीक ठाक negative predictive value, ताकि आप उस लड़की को कह सकें कि यार हमने टेस्ट भेज दिए हैं, ये कर लिया है, I'm not really sure whether there is a preeclampsia or not. क्योंकि what happens is अगर preeclampsia वाली बात पे आ जाती हैं और वो क्राइटेरिया मीट कर रहा होता है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई. अगर वो जो ग्रे जोन वाला एरिया पेशेंट आता है कि when you're not sure, then you do these tests. And these tests ये जो वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ एंजियोजेनिक वाला जो फैक्टर्स वाला है वो एंड पे मैंने रखा हुआ था इसलिए, लेकिन कोई बात नहीं. उसमें ये होता है कि you start off at
22 वीक्स वहां से शुरू करके 36 वीक्स तक आप दरमियान में करा लेते हैं, और नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक उसकी बड़ी ठीक ठाक नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, जहाँ मैं काम कर रहा था वहां तो नहीं हो रहा था। सो दिस इज अ बिट न्यू टू मी, क्योंकि ये चंद सेंटर्स में हुआ है। 2 स्टडीज हैं, आप यू कैन ये मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे, पैरेट स्टडी है और एक मेरा ख्याल है इंस्पायर की स्टडी है, पैरेट PARROT स्टडीज, इस पे गूगल कर लेना, इंस्पायर INSPIRE, ये 2 स्टडीज हुई हैं जिसपे ये इस पे था। अमेरिकन ने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया। ये नाइस गाइडलाइंस में मेंशन है कि आप ये टेस्ट करा सकते हैं, वो I'll tell you about, बड़ा मुश्किल है ना है वो, ठीक है। एक तो प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर है और साथ उसके वो एक दूसरा है कोई टायरोसिन काइनेज टाइप चीज, उसका रेशियो कराते हैं, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, लेकिन वो मैं बता दूंगा उसको यू नो अबाउट इट, सो दैट समबडी आस्क्स यू कि हाँ जी फिलहाल ये हालात हो रहे हैं, दैट्स कह सकते हो रीसेंट बात है। एक्लैम्सिया को तो पता है ना क्या होता है? अच्छा चल ठीक है, ओके, एक्लैम्सिया पे भी आएंगे, इस पे भी एक अलग बात हो सकती है, ठीक है। अच्छा ये आता है किसी को, ये पता है ना? सेकंड लाइन देखिए इसकी, ना वो तो है ही है, तीसरी लाइन चलो भाई, हाँ हाँ ठीक है। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि शी हैज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, तो व्हाट इज योर रोल एज अ डॉक्टर? I'm just trying to tell you it. I'm not trying to reinvent the wheel here. Everything is written in the books. Just try to get your thinking organized. That means you need to see her more frequently, probably. ठीक है? She's not developing any. और हर antenatal visit पे क्या 2-3 चीजें होती हैं जो आपने जरूर करनी है ऐसे पेशेंट के साथ? Hypertension, urinary protein, बिल्कुल सही। silent symptoms, and examination में edema. बिल्कुल, बस आपने इससे ऑर्गेनाइज करना है, और आपने जो what you're saying is absolutely right. आपने बस ये करना है कि आपने पहले बात करनी है, बाद में हाथ लगाना है। पहले आपने पूछना है कि हाँ जी किया, ठीक है, पहले silent symptoms, then examination, and then urinary protein. बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, नाउ यू टॉकिंग, ठीक है जी। तो हर विजिट पे दैट्स द रीजन व्हाई यू डू इट। और अगर आपने इसको गो बैक अ बिट go backwards in her pregnancy this time around, she'll come to you at with a positive pregnancy test with her saas feeling very proud, mubarak ho, theek hai? What are you supposed to do? Rather than having a look at the ultrasound, you will also say anji assalamu alaikum ki haal hai, theek hai? You'll ask her a couple of questions, you'll ask her yeah at least uska blood pressure zarur hai, theek hai? So that, and then you note that thing down. Usually what happens is, I don't know how things work in the private setup, या मुझे भी तो उसमें होता यह था कि you should have every patient has a file, and on that thing जो पहले करते थे, ये डॉक्टर फरूक ने हमें सिखाया था कि हर प्रेगनेंसी के एक जो बुकिंग विजिट होता है उस पे you ascertain where this pregnancy settles, basically हाई रिस्क में आती है, लो रिस्क में आती है, किस में आती है, और उसके मुताबिक then you tailor the next few weeks, आगे से जो मंथ्स चलेंगे उसके कितनी बार उससे आना है, ठीक है, या किस वक्त ये प्रेगनेंसी अब हाई रिस्क बन चुकी है अचानक। तो पहले विजिट पे इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये मेरा ख्याल है इस पे एक अलग सीन होना चाहिए कि बुकिंग विजिट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द बुकिंग विजिट आपने समझना है, इन द सेंस कि whenever you see whether you're going to be sitting, sometimes you'll have your own practice, you'll be sitting alone, I think it will be safer for you to develop this sort of thing so that आप पिक कर लो। सारी गेम ये है कि अगर आपको पहले पता हो कि क्या होने लगा है, and if you are reasonably prepared for it, तो फिर it doesn't come as a shock, because the biggest fear of any doctor who ends up in the labor ward is कि यार पता ही नहीं लग रहा है क्यों नहीं, ठीक है, हर रोज कोई नया तमाशा, ये अचानक ये हो गया तो अचानक रौला पाया जाता है। If you are prepared for that rolla, then you are reasonably, you know what's happening, and then you are in charge, and as long as you have your senses about you and you are in charge of the situation, things usually are under control. तो इसलिए ये याद रखना है कि उसके पहले विजिट पे आपने उसका ब्लड प्रेशर लेना है, बेसलाइन लेना है, नोट करना है, यूरिन का हमेशा टेस्ट होना चाहिए जब भी वो आएगी,
हेलो करने आया तो यूरिन लेना नहीं, एक वो कहा कि इधर लंग दान लूंगी यूरिन यूरिन पास, मजाक है, ठीक। तो लेकिन ये करना, एंड इट शुड रिजॉल्व बाय 20 वीक्स। इंसिडेंस अब ये सिर्फ 4 to 6 लिखा है, वर्ल्ड वाइड nonsense. It could be 4.6, it could be 4 to 6%. In America, it's 5%. Excuse me, वही sir. कि Excuse me, sir. What is the meaning? It should resolve by 20 weeks. the gestational hypertension resolved by 20 weeks later. जी Seriously? हाँ है, sorry है, मैं सोते आसा और तुसी मनु रोजे रखो। अच्छा ठहर जाओ, ये मेरी गलती है, ठीक है, ठहर जाओ। मैं वापस कैसे जाते हैं, इसको बड़ा कर दे यार। अच्छा ये वाला, you've done well to pick it up। 12 हफ्ते, ठीक है, पोस्टमार्टम, सॉरी, ठीक है, ये मैं सो रहा था, आई एम सॉरी, इसको बड़ा कर दूं, अब छोड़, गलती हो गई, गोली मार सू मी, ओके। इंसिडेंस इसका 4 to 6% है, अमेरिका में 5% है। वैसे ये छा गई, who was this who picked it up actually? डॉक्टर शाहिदा। डॉक्टर शाहिदा, कंग्रेचुलेशन एंड वेल डन। ये मेरे जो सामने 25-30 लोग बैठे हैं ना, ये बिल्कुल चले और इन्हें कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है, वेल डन। थैंक यू सर। शर्म आनी चाहिए तुम लोग, गलती से लिख के बता दिया करना, मेरे में परहेज है तुम लोगों का मेरे से। अच्छा चलो ठीक है, वो वाला मैंने एक इंसिडेंट बताया था, वो याद रखना है। अर्ली ऑनसेट जो इंसिडेंट होता है प्री एक्लेम्पसिया का, वो वर्ल्ड वाइड 0.3% है ऑल केस एंड 2.7% है। ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज हैं, दे वेरी ग्रेटली, जस्ट रिमेंबर इट्स 4 to 6% रेंज, 5% का लोग, दैट्स ऑल्सो फाइन। और 2.7% है इसका वो लेट ऑनसेट वाले का, तो ज्यादातर लेट ऑनसेट ही होता है, ठीक है, बाकी अटरम पटरम बीच में आ जाता है। Risk factors. Why are risk factors important? Start thinking now. Stop So sleeping. categorize your patient into the high risk, moderate risk, low risk on a booking visit. Excellent, excellent. And And so then this, individualize patient's antenatal care accordingly. brilliant. Uh, फिर आपकी जिस पेशेंट को आप 8 हफ्ते पे मिल जाए, you're fortunate enough to see her throughout the pregnancy, या वो pregnancy test confirm करा के सास के साथ आती है, या वो आपको 24 हफ्ते पे मिले सर में दर्द के साथ in the labor ward presenting as an emergency. If you go through this, you will have a fairly decent idea कि क्या होगा। आपकी किसी न किसी जगह पे आपको फ्यूचर मैनेजमेंट में करेगी, और ये क्या है, इसका मतलब ये है, ये हिस्ट्री टेकिंग में ये चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अगर आप 4-5 बीमारियों का, 8-10 जो मेडिकल डिजीजेस, कॉमन मेडिकल डिजीज, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, उसका एक फ्लो चार्ट सा बना के रिस्क फैक्टर्स का, आप अपना जो एंटीनेटल कार्ड है या एंटीनेटल जो फाइल है, उसमें आप एक 2-3 सफ़ों पे क्वेश्चंस बना दे, आपको रटा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, व्हाट यू शुड बी डूइंग इज कि आप उसे अपनी फाइल में बना दें कि बुकिंग विजिट ये था, या फर्स्ट विजिट ये था, या व्हाटएवर इट वाज, आपने ये सवालों के जवाब, आपके पास डायबिटीज के हों, इसके हों, वो जितनी कोई 4, 5, 6, 7, 8 जो के मेडिकल कंडीशन हैं कॉमन है, 10 कोई हैं, मेरा ख्याल है 20 केसेस ऑब्स्टेट्रिक्स के हैं मैक्सिमम, और 10 केसेस गायनी के हैं, एंड गायनी खत्म हो जाती है। That is primarily the reason people like me chose gynecology, because we thought abdomen thorax की anatomy आ रही है, ठीक है, और ये बाकी सारा part 1 इसका होता है, so that was the main feature, ठीक है। तो अच्छा, why is this important? सोचो अपना previous history of eclampsia, जितना severe disease होगी, the greater the chances of her having issues. तो 8 times 8-fold increase है अगर पिछली बार मसला खराब हुआ हो प्रीवियस प्रेगनेंसी में, या खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो गया उपचारी के साथ, तो उसके साथ चांसेस हैं कि उसे दोबारा होगा, ठीक है। दैट्स इम्पोर्टेंट इन अ नटशेल। इस पे पूरा उसने कोई 36,000 किस्म के सफे लिखते हैं इसके पास। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस में क्या आता है जी, डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अल्लाह का शुक्र है, इज द मदर ऑफ ऑल थिंग्स, जिन्हों हो जाए उन्होंने फिर पीछे सब कुछ होता रहता है, ठीक है जी।
chronic hypertension, as we've already elaborated. If somebody is a chronic hypertensive, then there's a 5-fold increased risk of her developing preeclampsia. 5 गुना ज़्यादा. और the mother of, अच्छा, ये मैंने सवाल पूछा, जिनसे मैंने ये बात पहले बात की, वो बिल्कुल नहीं बोले. Maybe couple of other people. Obesity या overweight, जो कि मैं बन रहा हूँ, ठीक है. अब मुझे बताओ कि ये obesity आजकल इस पे या पिछले 10 कोई साल से ज्यादा इस पे काम हो रहा है, ये जरूर पढ़ लेना. मेरा ख्याल है इस पे भी होना चाहिए, because I think they started asking questions about obesity now. Obesity किस चीज में लिंक किया जा रहा है? A fatal disease. I'm not just talking about obstetrics. Obesity has been directly linked to these. और Sleep apnea. Sleep apnea. नहीं, मैं उसकी पैथोलॉजी नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ ताकि तुम्हारे ज़हन में आए कि ओबेसिटी कितनी कोई बड़ी चीज है, क्योंकि हर चीज में इसका लिंक बन रहा है और डायरेक्ट लिंक बन रहा है एज अ causating factor in Cancer also. Now they are. Sir, obstructive sleep Sir, apnea. is a moderate risk factor for developing preeclampsia. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. और ये कैंसर इज द थिंग, ठीक है. कैंसर हर चीज में ये भाईजान आ रहे हैं, ठीक है जी. देयर इज अ how much of the Pakistani population is not to forget the obese but undernourished? You don't listen to his taqreer, do you? Okay, all right. It's roughly 40 to 45% of your grown population, और आपकी याद रखना कि 60 to 70% of your population is under the age of 30. आधे लोग, आधे बच्चे आपके मुल्क के ऑलमोस्ट अंडर नरिश्ड हैं, ठीक है. Yet there is a fair, I don't know कि पाकिस्तान की क्या statistics हैं as far as obesity, मैं सोचने की कोशिश करूँगा कहाँ से ढूंढूं statistics, लेकिन obesity का ये दूसरा मतलब है, ठीक है. तो एक तरफ ये है और एक तरफ वो है, ठीक है. सर स्लाइड नहीं चेंज हो रही. हाँ मैं कर लेते जी. सॉरी यार, मुझे मेरा ख्याल है लिख रही हैं काफी. अच्छा 10 मिनट रह गए. 10 मिनट रह गए. मैंने तो तुम्हें बता. अच्छा आगे आ जाओ. नलिपैरिटी इज अनदर थिंग. नलिपैरिटी में क्यों होता है ये, सोचा कभी? First time you are going to see that how female body responds. हाँ हाँ. उससे पहले तो आपको पता ही नहीं. How the body responds to what? Paternal, I think Paternal antigens. antigen. Paternal antigen. Whether it's sensitized or desensitized, the girl is not yet desensitized to the paternal antigen. So theoretically speaking, nulliparity, yeah, she doesn't have a baby, there's a change of partner, and she वहाँ पे भी चांस बन जाता है, ठीक है. अगर इसी हाइपोथेसिस पे जाए, they're not really sure, लेकिन इस पे 15 सफे लिख देंगे होंगे कमीनों में, ठीक है. बस इसमें ये बात याद रखने वाली चीज. और हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लैम्सिया फर्स्ट डिग्री रिलेटिव पता नहीं कितना परसेंट था, लेकिन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट जस्ट रिमेंबर इट इज इम्पोर्टेंट एज फार एज द रिस्क फैक्टर्स आर कंसर्न्ड. 4 times, sister and mother. Brilliant, thank you. Advancing maternal age, use of ART, similar sort of hypothesis as far as this thing is concerned as nulliparity. Plus वो कहते हैं कि जो आप डोनर यूज करो ना एग्स वगैरह, उसमें ज्यादा मसला पड़ जाता है, ठीक है. अब ART जो भाईजान है ना, इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि हर चीज आ रही है, तो हर चीज के रिस्क फैक्टर्स अल्लाह का शुक्र हो रहा है, ठीक है, कि एवरीथिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड. एब्रप्शन से लेके तो प्री टर्म से लेके तो मिस कैरेज से लेके तो any damn thing you think of is probably, you know, is an increased risk. It's a high risk pregnancy in itself. So somebody mentions ART, kaan khade kar lo. Halanki a lot of people over there actually deliver these patients, use them at about term and say it's all right. Okay? Lekin chalo, if you are confident enough, absolutely go for it, because you can justify anything
in obstetrics, provided you provide a decent enough explanation. It's just like being in court. You should have a ठीक ठाक आपके पास evidence हो, आप अपनी बात को back कर सको और आप में इतनी ability हो कि आप उस चीज को deliver कर सको. So you can do anything. ठीक? Not about anything, but fairly. सर why in ART? अगर हम ART में एक अच्छा ovum pick कर ही रहे हैं, तो why ART is responsible for all these things? Now, usually what happens is they've noticed, they haven't found out exactly what's going on. Maybe it's because of the paternal antigen, and plus ये ज़्यादातर होता है उसमें they're saying donor में frozen donor sperms, fresh donor sperms, उसमें जब आके आप किसी के साथ ART करते हो उसमें फिर ज़्यादा chances हो जाते हैं as compared to the general population of developing preeclampsia. This is what they've noticed. They haven't actually hypothesized besides वो वाला जो fact था nulliparity वाला कि जी कि paternal antigen के साथ इसके साथ कोई match नहीं करता या maternal antigen के साथ नहीं करता, but they're still not sure because it's still you know they're not sure as to actual cause क्या. ठीक है जी? Pathogenesis of the problem, ये वही है spiral arteries वाली बात आ गई जो पहले हम कर रहे थे. वो जो ठीक डेवलप नहीं होगा, अंडर परफ्यूजन होगा. क्या होता है अंडर परफ्यूजन से? Toxic substances are not cleared away and nutrients are not provided. बिल्कुल, बच्चा छोटा रह सकता है, ठीक है, डिस्ट्रेस में जा सकता है. अच्छा मुझे बताओ, जब खत्म हो जाए ना, 2 मिनट रह जाए, मुझे बताना ये गालियां बहुत. हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. मुझे बताओ, जब एक यू एग्जामिन अ पेशेंट, उसके पेट पे आपने हाथ रखा, शी इज 36 वीक्स, आपने उससे तो आपको लगा यार ये तो 30 वीक्स तक है फंडलाइटिस के. आपने स्कैन कराया, उसने कहा जी कि IUGR है. IUGR दो तरह का होता है, Symmetrical, asymmetrical. सिमेट्रिकल का मतलब, ये सारे पैरामीटर्स इसका क्या मतलब? Symmetrical means any insult to the baby. जी, इसका मतलब हो सकता है कि या तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी, ऑलवेज we are in a society where we are shorter by a good foot as the rest of the world, at least Europe, ठीक है, और Africa, yeah, we are small, okay, ठीक है. तो symmetrical IUGR भी हो सकता है, ठीक है. दूसरा होता है symmetrical IUGR में, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शुरू से कोई प्रॉब्लम है. सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल में ज्यादातर ये होता है, ठीक है, किसी को अंडर परफॉर्म कर रहा है जो प्लेसेंटा है आपका, उसमें परफ्यूजन का भी मसला है, हिपोक्सिया, इस्कीमिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. उसमें फिर होता क्या है, वो किस चीज को मेजर करते हैं पैरामीटर में? Abdominal circumference. Abdominal circumference and head circumference को compare करते हैं. जी सॉरी, एक बंदा बोले, बताएं. सॉरी, AC सर, AC and AC को measure किया जाता है. एसी को मेजर करते हैं और किसके साथ कंपेयर करते हैं? Head circumference के साथ. हेड सर्कमफेरेंस के साथ, ठीक है. और उन दोनों की कोरिलेशन हो तो वही सिमेट्रिकल. हाँ, अगर एसी आपकी कम आ रही, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में व्हेन यू आर डूइंग स्कैन, so you can just do BPD and female length. That's okay. You don't have to do. But as the third trimester starts, BPD इतना significant नहीं होता. आप abdominal circumference करें, that will give you a closer idea as to how the pregnancy is doing. उसकी gestation age के मुताबिक चल रहा है, काम के नहीं चल रहा. क्यों? Glycogen storage in liver. आपने पास 100%, ठीक है, वेल डन. ग्लाइकोजन उसके ऊपर होता है, और उस ग्लाइकोजन का क्या फायदा होता है? Glucose providing. Stress situations में. जब वो लेबर में जाती है, स्ट्रेस में जाती है, जब कंट्रैक्शन होती है, 40-40 सेकंड की कंट्रैक्शन होती है, तो वहां पे वो जो ग्लाइकोजन है वो एनारोबिक में, ऑक्सीजन तो अंदर आती नहीं, तो वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना के अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करता है बच्चा, जो कि उसके लिवर के ऊपर लगी होगी. So if there is no glycogen, और वो भाईजान वैसे ही बेचारे कोई हमारे जैसे 40% of the our population is they're undernourished, malnourished, they cannot reach growth potential. लंबे उतने नहीं हो सकते, तगड़े उतने नहीं हो सकते सारी उम्र के लिए. पता नहीं और कितनी कितनी बीमारियां आएंगी अभी किसी ने रिसर्च की. तो वो that is the problem. वहां पे जाके फिर जब उसको 2 पेन्स आती हैं,
तो आपकी CTG पे डिप्स आनी शुरू हो जाती है एंड शी इज नॉट डायलेटेड। इसलिए इंड्यूस करना इन्हें जब कोई, अब अगर मैं किसी से कहूँ कि जी कि अब याद है मैंने पिछली बार कहा था कि बिशप करके बिशप जरूर करना या कहना जरूर कि बिशप करूंगी, पेल्विक एग्जामिनेशन करूंगी, नहीं फेवरेबल, हालात खराब हो रहे हैं, मैं सेक्शन कर दूंगी, जस्टिफाइबल, एनीबडी शुड से दैट, ठीक है। और अगर इसमें भी अगर आप ये वाली बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ठीक है जी मैं करती हूँ, तो ये वाला चांस हो सकता है। सो यू कैन जस्टिफाई एनीथिंग प्रोवाइडेड यू हैव द एविडेंस टू बैक इट अप, ठीक है। प्रोवाइडेड यू, नाउ इट्स मेकिंग सेंस। यदि उसके पास नहीं है ग्लाइकोजन, उसका जो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है वो 28 वीक्स की आ रही है, जेस्टेशनल एज उसकी 32 वीक्स की, उसकी बीपीडी आ रही है, बेबी ठीक है, स्टेरॉइड मैंने दे दिया है, ये वो हालात उसके ठीक नहीं लग रहे, तो मैं अगर उसे डिलीवर करना चाहूँ फिर इस पे आगे भी बहस हो सकती है कि वो कहेगा अच्छा जी आगे क्यों ना करना, ठीक है। तो ये याद रखना ये बात। अच्छा, उससे क्या होता है, अब ये यहाँ पे द नेक्स्ट लाइन वुड एक्सप्लेन जो वो ये कह रही थी ना डॉक्टर साहबा के एंजियोजेनिक फैक्टर्स, एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स जो हम कराएंगे, ये जब होता है उसके बाद एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स आर रिलीज्ड इनटू द सेंट्रल सर्कुलेशन, ये वो हैं। अब मैं उस पर आ ही जाता हूँ क्योंकि टाइम खत्म होने लगा, फिर मुझे डांट पड़ेगी, गालियां भी पड़ सकती। अच्छा अच्छा, ये है प्रिडिक्शन वाली बात, ठीक है। यूरिनरी या प्लाज्मा, एंड अब ये मुझे पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये मैंने किया नहीं है, so I would request you to start doing these things so that they become second nature to you, so that you don't have to go over it over and over again, ठीक है। ये यूरिनरी प्लाज्मा एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं सच एज सॉल्युबल एफएमएस लाइक टायरोसिन काइनेज। आई नो अब टायरोसिन काइनेज का कोई बंदा मुझे पढ़ के सुनाएगा क्या होता है, पढ़ लेना, पढ़ोगे कोई तो लिख रहे हैं सर तो हमारी स्लाइड ही नहीं चेंज हुई। है जी। सर हमारी स्लाइड नहीं चेंज हुई, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही आ रहा है। उनकी स्लाइड नहीं चेंज हुई थी, ये इसलिए जो हमारा बंदा है ये आपके खिलाफ साजिश कर रहा है अभी हो रही है। हाँ जी, हमारी भी चलेगी बस, चले अब आगे। नहीं सर, वैसे की वैसी है। No, sir, नहीं आ रही। उनका इशू होगा। अच्छा चलो, ये दिस इज द टिपिकल पाकिस्तानी आंसर टू मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स के इशू आपका है, ठीक है। सर ये कंबाइन सबका इशू आ रहा है। ऑल Actually, ऑनलाइन। अच्छा मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सच एज ये यूरिनरी या प्लाज्मा एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं सच एज सॉल्युबल एफएमएस लाइक टायरोसिन काइनेज 1, जिसको कहते हैं SFLT1, ठीक है। और दूसरा होता है जिसके लिए आप जरूर इसको आपने कीजिएगा प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर, और इनके दोनों चीजों के वहां क्या चला गया, हाँ अब ठीक है, ये आ गया, अब आ रहा है नहीं सर प्लेसेंटल। हमारा तो नहीं आ रहा। अच्छा ये Still आप लिखिए नहीं प्लेसेंटल आ रहा ग्रोथ था। फैक्टर। नहीं सर वो कोई मसला नहीं, वो गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है, ड्यूहर्स में भी। अच्छा बस ठीक है फिर, congratulations। अच्छा, और फॉर डिटर्मिनिंग वेदर द पेशेंट विद some of the manifestations of preeclampsia but not meeting diagnostic criteria, ये वो है when you are in a, क्या वो उर्दू का लफ्ज है यार एक बड़ा जबरदस्त, शशोपंज। I got 70 out of 200 in FSC in Urdu. I'm extremely bright. अच्छा ठीक है, तो then you basically then what you do is you try to see whether they're meeting diagnostic criteria, because if you keep one patient unnecessarily in the labor ward, it costs a lot to the national exchequer, and that's the basis of these things. कि अगर हम इसे predict कर लेते हैं, and these tests are viable, it's got a very decent high negative predictive value. अगर ये negative है और वो अर्ली प्रेगनेंसी में इसको 20वें हफ्ते 22वें हफ्ते से शुरू करके 36 वीक्स तक चल सकता है, तो अगर ये आ जाता है नेगेटिव, देन यू कैन से कि you're all right, ठीक है, we're 90% sure you're reasonably okay, but then you always add because there is never 100% in medicine या surgery, उसमें हमेशा कहते हैं reasonably confident कि ये ठीक है, but if this thing persists and if you are bothered, yeah, if you don't feel like going home, then it's entirely up to you. You will never force a patient to leave the hospital until and unless she wishes to do so. You convince them. You don't force people.
यहाँ पे ठीक है, that's it. जी सर, डॉक्टर राशिद is waiting. सर किसी है, किसी है, सर Next one.